Am I audible to all? Yes, Am I sir. okay? So in the previous chapter on the Saturday, I think not Saturday. We didn't have a lecture on Saturday, na? Did we have a class on Saturday? No, sir. Before that, we had a class. I think last class was on Thursday, right? Yes, sir. Thursday, right? So in the previous chapter, we were discussing about union and its territory. The chapter is a bit long, so some of the part is still remain to be discussed. So today we will complete it. So one by one, we will go through all the slides. One look just for your revision. Union and its territory, Article 1 to 4. So we have almost discussed all these articles, and we were discussing about the all the divided India were combined into the one part. That is 452 parts. Sorry, 552 parts were combined into unique India. That is into 28 states. So here we were. I think evolution of states and union territories, integration, princely states. We have discussed this. Dhar Commission, JVP discussed. We have again discussed this. Dhar Commission, what was the recommendation of Dhar Commission? States will be reorganized on the basis of language or administration? Administration. Administration. And JVP again gave the same report. They also said states will be reorganized on the basis of administration. And the third commission that came into existence, that was Faisal Ali Commission. And if finally, this commission submitted its report, and they said language will be the division, sorry, reorganization of the states. So language will be the main issue. ओके, तो इन्होंने ये बोला कि लैंग्वेज के आधार पे हम राज्यों का निर्माण करेंगे, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो फैजल अली ये कमीशन में और भी 2 मेंबर्स थे, टू मोर मेंबर्स वर देयर. सो फर्स्ट वाज द KM पानिक्कर, सेकंड HN कुंजरू, अलॉन्ग विद फैजल अली. उसके बाद फैक्टर्स हमने देखे थे कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन की थी. सो वी डिस्कस अबाउट द प्रिजर्वेशन and strengthening of the unity and security of the country, linguistic and cultural homogeneity, financial, economic, administrative considerations, planning, promotion of the welfare of the people in each state as well as the nation as a whole. तो ये 4 चीजें इन्होंने कंसिडर की थी. ओके, टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. किसी भी राज्य का निर्माण करने के लिए 4 चीजों को देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा, इनको कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. Then commission suggested the abolition of four-fold classification. राज्य पहले फोर-फोल्ड यानी कि ABCD में राज्य डिवाइड थे, ये क्लासिफिकेशन था पहले. तो ये क्लासिफिकेशन हटा दिया गया जैसे ही फैजल अली ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था. इन्होंने कहा था ये जो फोर-फोल्ड क्लासिफिकेशन है राज्यों का निर्माण का, इनको हटा देते हैं. ABCD में ए में कुछ राज्य, बी में कुछ राज्य, सी में, डी में कुछ राज्य. तो ऐसा नहीं रहेगा. अब इसके साथ साथ क्या होगा कि राज्यों को नाम वगैरह दिया जाएगा. अभी अलग अलग सेपरेट राज्य बनेगा ना, तो ग्रुपिंग निकल जाएगा. तो ऑलरेडी हमने कुछ राज्यों को डिस्कस भी किया था शायद. यस, हैव वी डिस्कस दिस पॉइंट? 1950 या वी हैव डिस्कस. सो 1956 के बाद कौन से राज्यों को निर्माण किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात थे. सो बिफोर 1956 देयर वर ऑलमोस्ट हाउ मेनी स्टेट्स इन एग्जिस्टेंस? बिफोर 1956 how many states are already made? How many states were already made? 14. 14. Exactly, 14 states were already made. Only rest of the states were to be implemented or they were to be created. So उसमें से महाराष्ट्र, गुजरात ये बना 1957 के बाद. आफ्टर द डिमांड ऑफ सदर स्टेट्स, कौन सा साउथ के राज्य ने डिमांड की थी कि लैंग्वेज के आधार पे हम आपको स्टेट बनाने. कौन सा स्टेट था पहले डिमांड करने वाला?
लैंग्वेज के आधार पे। आंध्र प्रदेश। एग्जैक्टली, आंध्र वाज द फर्स्ट स्टेट। उसके बाद सारे राज्यों ने फिर लैंग्वेज के आधार पे किया। अब ये महाराष्ट्र गुजरात बड़ा एरिया था, उसको लाइक बॉम्बे बोला जाता था पहले, तो कच्छ तक ये एरिया पूरा स्प्रेड था। लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा गुजराती और महाराष्ट्र स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, तो इनमें डिवीजन किया गया। सो 1960 बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड I think we have discussed it also. Dadra Nagar Haveli also we discussed. We have taken this from Portuguese. Portuguese दादरा नगर हवेली पे 1954 तक रूल कर रहे थे। उन्होंने बाद में इनको लिबरेट कर दिया, फ्रीडम दे दिया इसको, और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैरिड किया गया 1968 के बाद, सॉरी 61 के बाद एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, देन गोवा दमन दीव के बारे में हमने डिस्कस किया था। या फ्रॉम हियर वी नीड टू बी डिस्कस। So Goa, Daman and Diu. India acquired these three territories from Portuguese. पोर्तुगीज को तो गोवा दमन दीव को छोड़ने के तैयार ही नहीं थे। दादरा नगर हवेली पे भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दे कंसिडर्ड इज एट देयर फादर्स लैंड। ठीक है, तो बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, वहाँ पुलिस एक्शन ले ली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 61 में, और उनको वहाँ उनसे आजाद कर लिया इंडिया ने। ठीक है, पोर्तुगीज वहां से भगा दिए इनको, पोर्तुगीज को। So they were constituted as a union territory. इनको 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की गई 1962 में, और इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, दोनों को भी, गोवा को भी दमन दीव को। लेकिन बाद में गोवा को 1987 में सेपरेट राज्य का दर्जा दिया गया, स्टेटहुड उनको मिल गया, तो इनको यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में से हटा दिया गया गोवा को, बिकॉज ये सेपरेट राज्य बन गया। और आफ्टर दैट कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव वाज मेड ए सेपरेट यूनियन टेरिटरी। दमन दीव उस टाइम पे भी यूनियन टेरिटरी था, आज भी यूनियन टेरिटरी। अभी तो दमन दीव और इनको दादरा नगर हवेली को एक कर दिया, पहले अलग अलग थे दोनों भी। सो पौंडीचेरी, टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, इसमें आई थिंक वी अगेन डिस्कस दिस, आई रिमेम्बर, बट स्टिल वी विल गो थ्रू रिवीजन। इसके बाद का स्लाइड आई थिंक वी वर टू बी डिस्कस। सो पौंडीचेरी, कैराकल, माहे, यानम। ठीक है, इन चार। सर आपका स्क्रीन शेयर बहुत छोटा दिख रहा था, दिख नहीं रहा, वो आपको पिन नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन शेयर मैंने तो फुल पेज किया है सर। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या पूरा? स्क्रीन शेयर आपका नहीं सर, आपका ही चेहरा दिख रहा है उसमें स्क्रीन शेयर में। देखो अभी दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा हूं मैं थोड़ा अभी। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है। जैसे तो मैं डाल रहा हूं। ओके सर, आगे क्वेश्चन लिखना है। भी यूनियन टेरिटरी था, आज भी यूनियन टेरिटरी है। कैराकल, माहे, यानम और पुदुचेरी नाम का ये चार जो प्रांत थे, इनसे पौंडीचेरी क्रिएट हुआ। सो फ्रेंच ने ये हैंड ओवर किया था इंडिया को 1954 में, और उसके बाद इंडिया ने इसको एक्वायर्ड टेरिटरी में रख दिया था। एक्वायर्ड मीन्स इनसे, जैसे पोर्तुगीज से हमने गोवा दमन, ये तो हमने एक्वायर नहीं किया था, ये तो हमने छीन लिया, ये हमारा ही था। ठीक है, पौंडीचेरी तो हमने एक्वायर्ड में रख दिया था, एक्वायर्ड कैटेगरी में, ये 1962 तक। सो उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी बना है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, चलो अगला स्लाइड देख लेते हैं। नागालैंड, नाउ यहाँ से हम अभी डिस्कस करेंगे नागालैंड। नागालैंड का निर्माण कब हुआ? नागालैंड तो अभी भी अगर आप देखोगे, नागालैंड का कल्चर, नागालैंड का जो संस्कृति है पूरा अलग ही है। सो नागालैंड जो है, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? क्या है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। ठीक है, आपको आवाज आ रही कि नहीं सबको? आवाज क्लियर आ रही कि मेरी सबको? यस सर। ओके, तो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। 1963 में ये जो नागालैंड था, इनको फॉर्म किया गया बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड चुएनसेंग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। तब उस टाइम पे आप, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है, मैं आपको ये जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इसमें थोड़ा बता दूंगा। तो नागालैंड और आसाम, उस टाइम पे जो आसाम था वही नागालैंड, यानी कि नागालैंड कोई ऐसा राज्य नहीं था अलग। ठीक है, आसाम में नागालैंड आता था, लेकिन इसको नाम तो बाद में दिया गया, 63 में दिया गया, जब आसाम से दो एरिया को डिफरेंट किया। एक नागा हिल्स को निकाला गया
और एक चुनसेंग एरिया को, इन दोनों एरिया को असम से सेपरेट करके नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया 1963 में, और दिस वाज डन टू सैटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ द हॉस्टाइल नागास। तो ये हॉस्टाइल नागास का मतलब ऐसा है कि उस टाइम पे नागा जो लोग थे, नागा एक कम्युनिटी था। आसाम में बोडो और आसाम में एक नागा करके एरिया था, वहाँ पे नागा कम्युनिटी थी। तो नागा लोग बहुत ज्यादा वायलेंस करते थे उस टाइम पे। तो इनका वहाँ पे जो आसाम की जो पॉपुलेशन थी प्रॉपर, उनके साथ हमेशा उनका कोई ना कोई झगड़ा होता था। और तो और इनकी एक डिमांड भी थी कि हमें अलग नागालैंड चाहिए इनके लिए। इसके लिए इन्होंने एक मूवमेंट भी लॉन्च की थी, ठीक है, नागा मूवमेंट। तो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थे ये लोग। सो हावेवर बिफोर गिविंग नागालैंड, मुझे बताओ सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है नागालैंड का? ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। और वहाँ राष्ट्रपति स्पेशली जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट करने के लिए। कोई बताएगा मुझे कौन सा फेस्टिवल है? अनम्यूट करके बताइए या फिर कमेंट में बताइए इसमें चैट बॉक्स में। सो हावेवर बिफोर गिविंग नागालैंड द स्टेटस ऑफ द 16th, चलो मैं ही बता देता हूँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, याद रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखो, ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। So this was done to satisfy the movement of the hostile Nagas. So however, before giving Nagaland the status of 16th state of the Union, Indian Union, ठीक है, 16th हुआ उनको स्टेटस मिलने से पहले इंडियन यूनियन का, तो उनको गवर्नर ऑफ आसाम के कंट्रोल में रखा गया था। आसाम के जो गवर्नर थे 1961 में, उनके कंट्रोल में रखा गया था जब तक उनको इंडियन यूनियन का दर्जा नहीं मिला था पूरा, ठीक है, पूरे राज्य का फुल दर्जा नहीं मिला था। उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का निर्माण 1966 में। पंजाब जो था उसको बाइफरकेट किया गया था। वाई? बिकॉज दो, यानी कि एक ही एरिया था। हरियाणा ऐसा कोई एरिया नहीं था पहले, पंजाब में हरियाणा आता था, लेकिन दोनों की भाषा जो थी अलग थी। पंजाब एरिया में ज्यादा से पंजाबी बोलने वाले थे, ठीक है, और हरियाणा यानी हिंदी बोलने वाले। सो टू क्रिएट हरियाणा, तो हरियाणा क्रिएट करने के लिए अलग से इन्होंने ये पंजाब का बाइफरकेशन किया गया था, सेपरेट किया गया था पंजाब से हिंदी स्पीकिंग एरिया, दैट वाज हरियाणा। सो 17 स्टेट ऑफ, ये 17वां स्टेट बना था इंडियन यूनियन का, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ओके। और इससे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी निकाली गई, ठीक है, हरियाणा और पंजाब से। और आज भी अगर आपने चंडीगढ़ देखा, इन दोनों का कॉमन कैपिटल भी पंजाब और हरियाणा का, और ये यूनियन टेरिटरी भी इसी से निकाला गया था। सो दिस फॉलो द डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख होमलैंड, तो अलग सिख होमलैंड का डिमांड वहां पे बढ़ गया था। पंजाबी सूबा, सूबा का मतलब होता था रीजन। सो रेस बाय अकाली दल, उस टाइम पे अकाली दल बहुत एक्टिव था, आज भी अकाली दल वहां पे है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, ठीक है। तारा सिंह ने बोला था कि हमें अलग से पंजाब एरिया चाहिए, पंजाबी सूबा चाहिए हमें, ठीक है, तो पंजाबी स्पीकिंग एरिया उसमें आएगा। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन, आप ये याद रखना शाह कमीशन किससे रिलेटेड है। 1966 में शाह कमीशन जब अपॉइंट किया गया था, तो इन्होंने क्या किया, पंजाबी स्पीकिंग जो एरिया था उनको बना दिया इनटू यूनिलैंग्वेज स्टेट ऑफ पंजाब, और हिंदी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। देखिए यहाँ इन्होंने क्या किया, पंजाब को यूनिलिंगुअल में इन्होंने बना दिया, यानी कि पंजाबी भाषा बोलने वाला, और हिंदी स्पीकिंग एरिया में उसने हरियाणा को बना दिया। शाह कमीशन जब अपॉइंट किया गया था ना, तब दोनों अलग अलग राज्य इन्होंने बना दिए थे। तो टिल हिल एरियाज वर मर्ज्ड विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिल एरिया इस दोनों राज्यों में जो आता था, तो यानी कि अभी पंजाब से कौन से राज्य की बॉर्डर लगती है? पंजाब से लगती है हिमाचल की बॉर्डर। तो जो भी हिल एरिया था वो हिमाचल में कन्वर्ट कर दिया, हिमाचल प्रदेश, वो ना पंजाब को दिया ना हरियाणा को दिया, ठीक है। सो 1971 में यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश की फॉर्म की गई, यानी कि हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। 1971 में यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ द स्टेट। तो देखिए 1971 के पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? यूनियन टेरिटरी। 71 में इनको राज्य का दर्जा दिया गया, और ये इंडियन यूनियन का 18वां राज्य बना दिया इसको। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सॉरी मेघालय, तीनों ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है।
1972 में पॉलिटिकल मैप जो था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे 1972 में। उसमें 2 यूनियन टेरिटरी जो थी, मणिपुर और त्रिपुरा, एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड, इनको राज्य का दर्जा मिल गया। पहले मणिपुर त्रिपुरा ये भी यूनियन टेरिटरी में थे, लेकिन 1972 में थोड़ा पॉलिटिकल मैप में बदलाव किया गया नॉर्थ ईस्ट के, और उसमें तीनों राज्यों को अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया। गॉट स्टेटहुड, सेपरेट स्टेटहुड, एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेपा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन इसको बोला जाता है, फ्रंटियर एरिया क्या फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता है। तो नेफा किसको बोला जाता था, एक एग्जाम में पूछ सकते हैं आप। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया था उसको नेपा बोला जाता था। तो इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग, इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया नेफा को। और विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन कितने हो गए, पहले 18 थे, हरियाणा 18वां बना था, अब ये तीनों ऐड कर दिए 21 बन गए, ठीक है। तो बाद में ये भी बन जाएंगे स्टेट्स, तो देखते हैं आगे। तो टोटल कितने हो गए, 21 स्टेट बन गए। मणिपुर बना 19, त्रिपुरा बना 20 और मेघालय बना 21। तो इनिशियली 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 में ये क्रिएट किया गया था। सो मेघालय as an autonomous state or sub-state within the state of Assam with its own legislature and council of ministers। पहले क्या किया गया था, देखिए इनिशियली पहले जब 22nd अमेंडमेंट एक्ट की गई थी 1969 में, यानी कि इनको राज्य का दर्जा मिलने से पहले मेघालय जो राज्य था, इनको एक ऑटोनॉमस राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑटोनॉमस राज्य का दर्जे के अंडर क्या क्या था इसका, सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम, ओके। आसाम में ही सब स्टेट का दर्जा दिया गया था, यानी आसाम में ही मेघालय था पहले, और उसी में सब स्टेट, आसाम में ही सब स्टेट बना दिया गया था, ठीक है। और उसको अपनी खुद की लेजिस्लेचर दी गई, उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी खुद का उनका सेपरेट दिया गया। सो इसी के साथ साथ दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ मेघालय। तो मेघालय के लोगों की जो इच्छा थी वो यहाँ पे नहीं रुकी, ठीक है, क्योंकि मेघालय, मैंने बोला ना आपको, आसाम का पार्ट था, और आसाम में ही सब स्टेट इसको बनाया गया था राज्य का दर्जा मिलने से पहले, ठीक है। लेकिन वहां के लोगों ने थोड़ा आंदोलन किया, एजिटेशन स्टार्ट किया था रिगार्डिंग सेपरेट स्टेट। सो यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर आल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ आसाम। तो देखिए आसाम कितना बड़ा राज्य था, आसाम में से ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी निकाला गया और नेफा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम आगे जाते हैं, सिक्किम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे। सबसे फेमस चोग्याल डायनेस्टी का रूल था यहाँ पे, चोग्याल डायनेस्टी। सिक्किम भूटान को बाउंड्री है। तो यहाँ 1947 में टिल 1947 तक सिक्किम इंडियन प्रिंसली स्टेट था, एक राजा का राज चल रहा था यहाँ पे। इन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया था, लेकिन ये सेपरेट था, इंडियन यूनियन में नहीं था। सो इन 1947 आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेसी, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था और ब्रिटिश पारामाउंटेसी यानी ब्रिटिश राज खत्म हो गया था इंडिया से, तब सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट राज्य बना था इंडिया का। प्रोटेक्टोरेट यानी कि प्रोटेक्शन इंडिया प्रोवाइड करेगा सिक्किम को, यानी कि फ्रॉम द आउटसाइड अटैक, फ्रॉम आउटसाइड वॉर, ठीक है। कोई अगर उसको थ्रेट करने की कोशिश करेगा या फिर वॉट एवर, सो उससे इंडिया उनको प्रोटेक्ट करेगा। सो वेयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने एज्यूम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस, जिस तरह कश्मीर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था राजा हरि सिंह के साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रेशन वो साइन करके वो ट्रीटी साइन किया था, उसी तरह यहाँ पे भी इंडिया ने एक ओरल एक ट्रीटी, वर्चुअल ट्रीटी साइन की थी इनके साथ,
उसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, ये सारी चीजें सिक्किम को इंडिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और in 1974 सिक्किम एक्सप्रेस इज डिजायर, तो सिक्किम ने अपनी इच्छा बना ली, उनको इंडिया का फुल फ्लेज राज्य बनना था, उनको फुल फ्लेज इंडियन यूनियन का पार्ट बनना था। 1977 में वो इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन एग्जाम में आपको ये सिक्किम के बारे में और एक इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाएगी, वो है 35th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ही सिक्किम को इंडिया का फुल फ्लेज पार्ट बनाया गया था, ठीक है। So by the parliament. So this amendment introduced a new class of statehood under the constitution by conferring on Sikkim the status of an associate state of the union territory. इस अमेंडमेंट के अंडर उनको एसोसिएट ऑफ यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। और इस पर्पस के कारण न्यू आर्टिकल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और वो था आर्टिकल 2A। एंड न्यू शेड्यूल ऐड किया गया 10th नंबर का, 10th शेड्यूल कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एसोसिएशंस। कौन से कंडीशंस रहेगी, कौन से दोनों के बीच में एग्रीमेंट रहेगी, दोनों यानी कि इंडिया और सिक्किम के बीच में, ठीक है, वो सारा 10th शेड्यूल में दिया गया था और इंसर्टेड, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया। दिस एक्सपेरिमेंट हाउएवर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इनको एक एसोसिएट राज्य बनाने का, ये ज्यादा दिन नहीं चला। इन्होंने सिर्फ एसोसिएट राज्य बना था इंडिया का, ठीक है, सिर्फ एसोसिएट राज्य 1975 में, ठीक है। तो उसके पहले तो सिर्फ 3 चीजें थी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, वो इंडिया इनको प्रोवाइड करेगा बिकॉज ये प्रिंसली स्टेट था, ये प्रोटेक्टोरेट बना था इंडिया का। और उसके बाद इन्होंने 1974 में एक एसोसिएट बनने का, एक एसोसिएट राज्य इंडिया का बनने का इन्होंने इच्छा अपनी जाहिर की थी, और इसी पर्पस के कारण ये आर्टिकल भी ऐड किया गया था, 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, ठीक है। बाद में हुआ ऐसा, दिस एक्सपेरिमेंट however did not long last as it could not fully satisfy the aspirations of the people of Sikkim. सिक्किम के लोगों की एस्पिरेशंस ये ज्यादा दिन यानी कि ज्यादा बना नहीं पाए थे। तो फाइनली क्या हुआ, सो आफ्टर दिस इन अ रेफरेंडम हेल्ड इन 1975 में एक रेफरेंडम किया गया था, जनमत, और उस जनमत के अंदर दे वोटेड फॉर द एबोलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि चोग्याल का जो साम्राज्य है वो हम नहीं मानेंगे, इनको हम खारिज करते हैं, ठीक है। तो रेफरेंडम किया गया था ना सिक्किम में भी, जनमत लिया गया था, और उसी तरह सिक्किम बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो 1975 ये ईयर आपको याद रखना है, यहाँ से फुल स्टेटहुड उनको मिल गया। और ये 36th अमेंडमेंट की गई थी, याद रखना, या 35th, ये उन्होंने डिजायर, इच्छा जाहिर की थी अपनी इंडिया का एसोसिएट राज्य बनने का, और यहाँ पे फुल्ली इंडियन स्टेट। तो यहाँ पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी अभी अब रूल चलता है, ठीक है, उनका चोगल विगल कुछ नहीं है। 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 was enacted to make Sikkim a full-fledged state of the Indian Union. 22nd अमेंडमेंट, ठीक है, सॉरी 22nd स्टेट बना था 22 नंबर का। 21वां कौन था, मेघालय था। तो सिक्किम is one of India's beautiful states in case of greenery, nature and all. So whatever. Next. और ये जो अमेंडमेंट थी 36 नंबर की, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पहला और जो 4th शेड्यूल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इसमें चेंजेस किए गए थे पहले शेड्यूल में, और 4th शेड्यूल में बदलाव किए गए थे। एंड एडेड न्यू आर्टिकल, नया आर्टिकल ऐड कर दिया 371F। ये किसके लिए ऐड किया, टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम, ठीक है। तो इट आल्सो रिपील्ड आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2A में भी 2A इन्होंने कैंसिल कर दिया था बाद में, जब 35 के अंडर आर्टिकल ऐड किया ना, तो 36 अमेंडमेंट के अंडर इसको खारिज कर दिया, निकाल दिया इसको। और 10th शेड्यूल जो था दैट वाज एडेड, जो 35th के अंडर ऐड किया गया था, उसको भी रिपील कर दिया था। और पहले और 4थे शेड्यूल में इन्होंने डिफरेंस यानी कि चेंजेस कर दिए थे। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir.
ओके, तो आगे चलते हैं। मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। गोवा तो हमने ऑलरेडी देख लिया, बट स्टिल हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गोवा का कैसा है, गोवा का फॉर्मेशन 1987 में किया गया, इसलिए यहाँ पे गोवा आया। मेरा मन नहीं। सो यहाँ पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 में 3 नए राज्य बनाए गए। ये तीनों राज्य 1987 में आए थे। ओके, मिजोरम 14, Arunachal Pradesh and 15, and Goa 16 came into being as a 23, 24, 25th states. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 नंबर का बना था मिजोरम, 24 नंबर का बना अरुणाचल प्रदेश और 25th नंबर का बना गोवा. So was conferred the status of full state as a sequel to the signing of memorandum of settlement. मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन किया गया 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजोरम मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में. मिजो नेशनल फ्रंट वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी है मिजोरम का. एंडिंग 2 डिकेड ओल्ड इंसर्जेंसी. मिजोरम में हमेशा इंसर्जेंसी चलती रहती थी, ठीक है. सेंट्रल फोर्सेस और वहाँ के जो आंदोलनकारी थे उसमें. सो अरुणाचल प्रदेश हैड आल्सो बीन अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1972. ये भी 1972 से यूनियन टेरिटरी बन गया. सॉरी, यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन गया, यानी कि पहले यूनियन टेरिटरी था 1972 में, ठीक है. 72 में क्या था, यूनियन टेरिटरी था, लेकिन 87 में पूरे राज्य का दर्जा मिल गया. और गोवा जो था इसको भी क्रिएट किया गया और इनका यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस था वो चला गया. एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा एंड दमन दीव, इसमें से गोवा को मिल गया फुल राज्य का दर्जा. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड. इन 2000 में ये 3 राज्य बनाए गए थे. छत्तीसगढ़ एमपी से अलग किया, उत्तराखंड यूपी से निकाला और झारखंड बिहार से निकाला और इन तीनों राज्य की स्थापना की गई. और इसी तरह ये 26 नंबर का, ये 27 और ये 28 नंबर का राज्य बन गया. तेलंगाना 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया. ये तो अभी रिसेंट है, ठीक है. इंडिया एग्जिस्टेंस, ये 29 राज्य बना था इंडिया का, इंडियन यूनियन टेरिटरी का. जम्मू कश्मीर था उस टाइम पे, याद रखना, इसलिए 29 बता रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे 28 बना. जम्मू कश्मीर का दर्जा निकाल दिया ना स्टेटस का, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया. इट वाज कम आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र से निकाला इसको. आंध्र एक्ट था 1953 का, उसको बनाया गया फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, known as the state of Andhra, by taking out of the Telugu speaking areas from the state of Madras. 1953 में मैंने बोला था ना आपको, आंध्र पहला राज्य बनाया गया था लैंग्वेज के आधार पे, और इसको तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी आंध्र की, उनको मद्रास से इनको बाहर निकाला गया था. मद्रास में तमिल स्पीकिंग थी. कुर्नूल वाज द कैपिटल ऑफ आंध्र. पहले कुर्नूल था. स्टेट ऑफ हाईकोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट गुंटूर. गुंटूर में इनका हाईकोर्ट निर्माण किया गया था. उसके बाद 1956 में एक नया कानून पास किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जो भी राज्य का क्रिएशन किया जाता है ना, किसी राज्य का, किसी राज्य में से राज्य निकालना या फिर नया राज्य बनाना, ये इसी एक्ट के अंडर किया जाता है. सो ये राज्य ने तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो हैदराबाद का था, उस टाइम पे हैदराबाद राज्य बोला जाता था तेलुगु स्पीकिंग, और आंध्र स्टेट, इनको मर्ज कर दिया था इस एक्ट के अंडर, ठीक है. और उसको आंध्र प्रदेश बना दिया. और अगेन ये बाइफर्केट किया गया 2014 में और तेलंगाना बनाया गया. सो कैपिटल ऑफ द स्टेट वाज शिफ्टेड टू हैदराबाद. तब से इनका कैपिटल हैदराबाद था. अभी क्या हो गया, अभी कॉमन कैपिटल फॉर 10 years इट इज हैदराबाद, बट आफ्टर 10 years सो अमरावती विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ तेलंगाना. देन इस तरह हमने सारे राज्य देखे यहाँ पे.
ये नॉट इम्पोर्टेंट. नाउ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी बना, मैंने आपको बताया. ये निकाल दिया गवर्नमेंट ने. स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर had its own constitution and thus enjoy special status by virtue of Article 370 the Constitution of India. In 2019, special status was removed or eliminated. Abolish किया गया उसको, स्पेशल स्टेटस को. ठीक है. और known as the Constitution application to Jammu and Kashmir, Order 2019. और जो निकाला गया वो आर्टिकल 370 उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर. दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर ऑर्डर known as the Constitution Order 1954. पहले 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था, उसको खारिज, इसको कैंसिल करके फिर नया ऑर्डर 19 का बना दिया गया. सो 2019 जो ऑर्डर था उसने सारी प्रोविजन जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो अभी जम्मू कश्मीर को लागू कर दी. पहले नहीं था ना, पहले उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन उनको लागू नहीं होती थी, अभी सारी प्रोविजन को लागू कर दिया. सो वहाँ पे अभी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का रूल चलेगा, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट. सो इन ऑपरेटिव आर्टिकल 370 को इन ऑपरेटिव कर दिया. और फर्दर जम्मू एंड कश्मीर रिओगेशन एक्ट जो था नया कानून बना दिया 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट. इसको बाइफरकेटेड करके ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइड कर दिया इन्होंने. 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दी जिनको नाम दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख. So Union Territory of Jammu and Kashmir comprises all the districts of Eastwell State of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जम्मू में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं कश्मीर जम्मू में वो सारे इसमें आएंगे. लद्दाख और लेह, सॉरी कश्मीर, कारगिल और लेह को छोड़कर, ये दोनों को छोड़. सो विच हैव गॉन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. लद्दाख को ये दोनों दिए गए, कारगिल और लेह, ये 2 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख को दिए गए. दोनों 2 ही डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लद्दाख. सो इस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया है राज्यों का निर्माण. तो ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस. तो नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्रीज फ्रॉम 14 to 6 इन 1956. उसके बाद 28 बन गया. और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 9 यूनियन टेरिटरीज बोला है, लेकिन ये भी 8 ही. सो 28 + 8 ऐसा है. अब चेंज ऑफ नेम, किसका किसका नाम बदला गया, कौन से राज्य का. देखो पहले यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया 1950 में. मद्रास का नाम था 1969 में, मद्रास बोला जाता था, उसको तमिलनाडु नाम दिया गया. मैसूर था पहले 1973 में. सो 73 में उसको कर्नाटक नाम दिया गया मैसूर को. लैकाडिव मिनी को अमेंदीवी आइलैंड को नाम लक्षद्वीप दिया गया 1992 में. यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो था was redesigned. ठीक है, इसको रीडिजाइन किया गया एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको हम ENCTD बोलते हैं, विदाउट बीइंग कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट. पूरा राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली को, यूनियन टेरिटरी है. और ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर किया गया था 1991 में. इन 2006 में उत्तरांचल नाम बदल के उत्तराखंड नाम दिया गया. ठीक है. और पौंडीचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी किया गया 2011 में, सेम ईयर. सॉरी नॉट 2011, 2006 में पुदुचेरी नाम किया गया पौंडीचेरी की जगह पे. और 2011 में ओडिशा को नाम दिया गया ओडिशा. ठीक है, ओडिशा पहले ओडिशा था. सो इस तरह हमने यहाँ पे ये चैप्टर खत्म कर दिया. अगला चैप्टर हमारा आज का रहेगा सिटीजनशिप, तो उसको हम स्टार्ट कर दे. ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, नॉर्मल है. कोई डाउट्स आपके यहाँ तक? No. Doubts, anyone? ओके, नो डाउट. तो स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर से. ये PDF को मैं हटा देता हूँ यहाँ से.
थोड़ा बस 1 मिनट दो मुझे, सो मैं तब तक पीपीटी ओपन करता हूँ, पीडीएफ ओपन करता हूँ। पीपीटी रेडी नहीं है, सो पीडीएफ ही ओपन करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको प्रॉपरली? दिख रहा है क्या? नोट दिख रहा है आपको? Yes, sir. थोड़ा मैंने एक्चुअली वो पीपीटी में नहीं लिया, तो थोड़ा पीडीएफ में मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? प्रॉपर दिख रहा है? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is our 6th chapter और this is citizenship, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी रिसेंटली 2019 में आपने देखा होगा सिटीजनशिप बिल पास किया गया था, तो इसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में आपने देखी होगी, स्पेशली इन दिल्ली। ये स्पेशली इन दिल्ली में हो रहा था, कोविड के कारण फिर वो बंद हो गया। ठीक है, सो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इसका, सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिक। इसका मतलब क्या है? कोई भी अगर इंडिया में आएगा वो इंडिया का नागरिक माना जाएगा? नहीं। ठीक है, तो नागरिक यानी हम किसको बोलेंगे? सो लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, अगर किसी मॉडर्न स्टेट को अगर आपने देखा, जैसे कि इंडिया एक मॉडर्न स्टेट ही है, सो हैज 2 काइंड्स ऑफ पीपल। इंडिया में 2 प्रकार के लोग आपको दिखेंगे, एक सिटीजन्स होते हैं, दूसरे एलियंस होते हैं। एलियंस यानी वो नहीं पिकी वाली मूवी में जो दिखाया हो, ठीक है, आमिर खान वो एलियन बन जाता है, वैसा नहीं। तो एलियन का, या फिर वो ऋतिक रोशन की मूवी है वो वाला एलियन नहीं। एलियन का मतलब है फॉरेनर्स, नॉट इंडियंस। जो इंडिया का सिटीजन नहीं उसको हम बोलते हैं एलियंस। तो यहाँ पे इन्होंने ये डेफिनेशन बताया कि पहले होते सिटीजन्स इंडिया में, दूसरे होते एलियंस। तो सिटीजन जो होते हैं वो इंडिया के फुल मेंबर्स होते हैं, इंडियन राज्यों के, एंड वो अलिजेंस टू इट, उनका पूरा अधिकार होता है इंडियन, जो भी इंडियन चीजें उन पे। सो दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो सिटीजन्स है वो सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स दोनों भी इंजॉय करते हैं, लेकिन एलियंस नहीं कर पाते। सो एलियंस क्यों होते हैं? एलियंस आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट। स्टेट का मतलब कंट्री बोल रहा हूँ मैं, दूसरे देश के लोग होते हैं, हैंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जैसे वोट नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। दे आर ऑफ 2 कैटेगरीज, 2 प्रकार के एलियंस होते हैं। एक होते हैं दोस्त एलियंस, दूसरे होते दुश्मन एलियंस, फ्रेंडली एंड एनिमी। फ्रेंडली एलियन का मतलब क्या होता है? जैसे जिसके साथ इंडिया के संबंध, जिस कंट्री के साथ बहुत अच्छे है, फ्रेंड रिलेशन है, उनके जो सिटीजन इंडिया में रहेंगे वो फ्रेंडली एलियंस हो गए। जैसे अमेरिकन सिटीजन इंडिया में आएंगे तो फ्रेंडली कंट्री के एलियंस। और इनेमी एलियंस का मतलब चाइना एंड पाकिस्तान, बोथ आर इनेमी कंट्रीज टू इंडिया। तो इनके जो नागरिक होते हैं तो उनको हम इनेमी एलियंस बोलते हैं, और वो ज्यादा राइट्स इंजॉय नहीं कर पाते इंडिया में। जैसे इंडियन नागरिक पाकिस्तान में अगर गया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो इंडियन है तो पाकिस्तान में उतना फुल्ली वो इंजॉय नहीं कर पाएगा अपना राइट्स। तो वैसे सिमिलरली वो इधर आके भी वो अपना राइट्स इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें, फ्रेंडली एलियंस का मतलब होता है आर सब्जेक्ट टू दोज कंट्रीज दैट हैव कोऑर्डिनेट रिलेशंस विद इंडिया। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो जिसके अच्छे संबंध इंडिया के साथ है वो हमारे फ्रेंडली है, और जिसके यानी कि बुरे संबंध है, जैसे दुश्मन जैसे, वो इनेमी एलियंस है।
तो इनेमी एलियंस जो है पूरा राइट एंजॉय नहीं कर पाते ना, मैंने जैसे आपको बोला। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में से भी कुछ फंडामेंटल राइट जो है हम एलियन फ्रेंडली एलियंस को दे देते हैं, बराबर, लेकिन हम इनेमी एलियंस को नहीं देते। उनके ऊपर बहुत नजर रखते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज वो कुछ भी कर सकता है, क्राइम कर सकता है, बम ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये 2 कंट्रीज के लोग हैं वो ज्यादा राइट नहीं एंजॉय कर पाते। दे एंजॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस। सो डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब फंडामेंटल राइट्स टीच करूंगा, तब सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो जो अरेस्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होता है, तो वो दुश्मन जो कंट्रीज के एनिमी सिटीजन है उनको नहीं मिल पाता इंडिया में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में दिया गया? सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट और आर्टिकल 5 से लेके 11 यहाँ पे सिटीजनशिप है। पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11, ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस। अब ये जो 1 2 3 4 5 से 7 जो 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये ऐसे राइट्स है, ये सिर्फ हमारे नागरिक को रहते हैं, ये किसी फॉरेन कंट्री के नागरिक को नहीं रहते। जैसे पहला, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये अधिकार किसको है? इंडियन को है सिर्फ। आर्टिकल 15, इसका मतलब है आर्टिकल 15 सिर्फ इंडियन के लिए है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन, आर्टिकल 19, यानी कि स्वतंत्र बोलने का, बात करने का स्वतंत्र, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का स्वतंत्र, ये 19, यानी कि 15 19 ये सिर्फ इंडियंस के लिए होते हैं। कोई फॉरेन सिटीजन यहाँ आके थोड़ी ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करेगा। कोई मानो इंग्लैंड का कोई पर्सन आ गया और इंडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और नरेंद्र मोदी को मानो पीएम को बोल रहा है कि यार इसने तो कुछ काम नहीं किया, इसी जोरदार करके पीएम बना, या फिर मानो कुछ भी बोले, तो क्या वो टॉलरेट किया जाएगा? नहीं, उसको पनिशमेंट हो जाएगी डायरेक्टली। तो अपने नागरिक बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, ठीक है। मनमोहन सिंह को नहीं छोड़ा था, तो मोदी को क्यों छोड़ेंगे, बराबर। तो राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ये भी सिर्फ हमारे नागरिकों को होता है। कल्चरल एजुकेशन राइट्स, ये सिर्फ हमारे नागरिकों को है, 29 and 30। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, 6 7 नंबर। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसेस, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना, वाइस प्रेसिडेंट बनना, ये सिर्फ हमारे नागरिक बन सकते हैं, ये कोई बाहर का पर्सन थोड़ी बनेगा। कल अगर डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ के बोला यार नरेंद्र भाई मैं तो उधर गिर गया, गिरने गया, मैं हार गया इलेक्शन यूएस का, तो मुझे आप इंडिया का प्रेसिडेंट तो बना दो, नहीं आप प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी बोलेगा भाई जाओ तुम्हारी कंट्री में वापस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे आप बोल सकते हो राइट्स अलग अलग होती है। ये राइट्स सिर्फ हमारे नागरिकों को है पता। गवर्नर बनना, राज्यों का अटॉर्नी जनरल बनना, कोई दूसरा बाहर का इंसान नहीं बन सकता। सो अलॉन्ग विद द अबव राइट्स, ऊपर के जो दिए गए राइट्स है, ये सिर्फ सिटीजन एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि पेइंग टैक्सेस, ठीक है। सिटीजन्स को ये भी राइट होता है टैक्स पे करना, नेशनल फ्लैग को इज्जत देना, यानी कि रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, डिफेंडिंग कंट्री का प्रोटेक्शन करना, ये हमारी क्या ड्यूटीज है। ये सारी चीजें आपको ड्यूटीज में दी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इन इंडिया, भारत में citizens by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president। देखो इंडिया में प्रेसिडेंट कौन बनेगा, किसको बनने का अधिकार है? जो इंडिया में बॉर्न हुआ है वो बन सकता है, या जो इंडिया में नहीं बॉर्न हुआ लेकिन बाहर से इंडिया में आया जब छोटा था तब,
उनके पेरेंट्स वगैरह आए होंगे। तो इंडिया में बड़ा हुआ, इंडिया में ही पूरा एजुकेशन किया, बड़ा हो गया, और इंडिया को उनको ऑब्वियस है कि क्या सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। तो फिर ऐसा भी नागरिक बन सकता है इंडिया का सिटीजन। मानो कोई पर्सन है, श्रीलंका में उसका बॉर्न हुआ, ठीक है, श्रीलंका में, और उसके पेरेंट्स इधर आ गए, इंडिया में शिफ्ट हो गए, बॉर्न का हुआ बच्चा श्रीलंका में और इंडिया में आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको, वो तो छोटा था जब उसके पेरेंट्स इंडिया में आ गए, तो मान लो 5 इयर्स का होगा, लेकिन जब वो 25-30 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, तब तो उसको इंडियन सिटीजन मिलेगा ही ना, इस थोड़ी। तो ऑब्वियस है कि 7 इयर्स तक इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है, टिल 7 इयर्स। तो फिर उसको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल जाएगा बाद। तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइज सिटीजन ना, याद रखना। बॉर्न मीन्स व्हाट, जो इंडिया में बॉर्न हुआ है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं चलता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट वही बनेगा जो अमेरिका में बॉर्न हुआ है, अमेरिका की मिट्टी में वही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, दूसरे का राइट ही नहीं है वहां पे, ठीक है। अमेरिकन फर्स्ट ऐसा बोलते हैं वो लोग। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा क्यों? नॉट एबल टू सी माई सेल्फ। इसमें हाँ, अभी दिख रहा हूँ। सो यह हमने देखा, उसके बाद आगे चलते हम नेक्स्ट स्लाइड। जैसा यूएस में मैंने बोला था ना आपको कि वहाँ जो बॉर्न हुआ है वही प्रेसिडेंट बनेगा वहाँ का। अब थोड़ी प्रोविजन, संविधान की कुछ प्रोविजन के सिटीजनशिप को लेके वो थोड़ी हम देख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है? आज का तीसरा लेक्चर, इसलिए थोड़ा सा गला बैठ गया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल्स 5 to 11 अंडर पार्ट। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया, ये संवैधानिक प्रोविजन है, पार्ट सेकेंड और आर्टिकल 5 to 11। एक एक आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले। However, it contains neither any permanent nor any elaborate provisions in this regard. तो कोई भी ऐसी परमानेंट या इलेबोरेट प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था जनवरी 26, 1950, इसमें इस समय जो इंडिया में थे वो सारे इंडिया के नागरिक, बस यही इसी को कंसिडर करता है। कोई ऐसा नहीं था कि यार पहले से तुम थे ओरिजिनल, को तुमको चेकआउट किया गया कि हाँ तुम इंडिया में पैदा हुए कि नहीं हुए, ऐसा नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया उसके पहले के जितने भी लोग थे सबको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी। अभी जो आर्टिकल्स है 5 to 11, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करनी और कैसे ये लॉस हो सकती है, कैसे गवर्नमेंट इसको निकाल देगा या इसको डिबार कर देगा, ठीक है। सो इससे कोई इसका संबंध नहीं है। सो इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एक अधिकार देता है, 5 to 11 एक कलम आर्टिकल जो है, टू इनेक्ट अ लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिगार्डिंग कोई भी इश्यू मैटर अगर होते होंगे तो इसके अकॉर्डिंग कानून बनाना इससे लेगी। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को कौन देता है? सॉरी, पार्लियामेंट को हमारा संविधान देता है, ठीक है। तो जैसे अभी 2019 में बना दिया ना कानून, तो जितने भी इन राज्यों से लोग इंडिया में आएंगे, कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बस ये 3 राज्य, ये 3 कंट्रीज है। यहाँ से जो भी कौन से कम्युनिटी का आएगा? Hindu, सिख, उसके बाद बौद्ध, हाँ, उसके बाद
जैन, पारसी, क्रिश्चियन, 6 कम्युनिटी याद रखना है, ठीक है। पारसी को ही ज़ोरोस्ट्रियन बोला जाता है। तो इन कम्युनिटी का जो भी अगर इंडिया में आएगा तो उनको नागरिकत्व दिया जाएगा। मैं आपको ये सेपरेट से बताऊंगा, अलग से टॉपिक एग्जैक्टली क्या है, इसमें पॉलिटिकल एंगल क्या है और ये सच में करना जरूरी था क्या। तो एक्चुअली वैसे अगर देखा गया तो ये गलती है। जैसे कि हमारे इंडिया में इतने लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रहा है, अगर ये इतने लोग अगर बाहर से इंडिया में आ गए, ये तीनों राज्यों, तीनों कंट्रीज से, यहाँ तो दिक्कत है जॉब की, ऑब्वियस है, बिकॉज इनका इकोनॉमी सही नहीं है। अभी थोड़ा बांग्लादेश थोड़ा सही हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो पूरा डाउन है। तो ऑब्वियस है कि वहां से माइग्रेशन होगा ही होगा इंडिया में। तो फिर हमारे लोगों को अभी जॉब नहीं है, नहीं धंधा नहीं, पानी नहीं, तो इन लोगों से कहाँ से, इन लोगों को कहाँ बैठाएंगे, कहाँ इनको लैंड देंगे, ठीक है। बस दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल एंगल, सो वॉट एवर इट इज। हाँ ठीक है, इसमें हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स became the citizens of India at its commencement, that is on January 26, 1950. वो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस किया गया था, उसमें 4 कैटेगरीज में सिटीजनशिप को थोड़ा दिया गया था। तो 4 कैटेगरीज दी गई उन्होंने कि सिटीजन कैसे बनेगा कोई नागरिक, कोई पर्सन, ठीक है। तो इसको एक 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फिर 4 कौन से कैटेगरीज है। तो देखिए कौन सा पर्सन इंडिया का नागरिक बनेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में घुसना नहीं है। मैं आगे का तो पार्ट आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें बहुत ऐसी प्रोविजन है आपका दिमाग हैंग हो जाएगा ना, इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है आपको, ये इस पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बट ठीक है समझ लो नॉलेज के लिए। चलो यहाँ पे जो 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरे इंडिया में लागू किया गया, उस टाइम पे 4 कैटेगरीज में सिटीजनशिप दी जाएगी किसी भी नागरिक को। तो पहला कैटेगरी हम देख लेते हैं। हमें से भी चैप्टर में यही डिस्कस करना है कि सिटीजनशिप कैसे दी जाती है और उसको कैसे लॉस, वो कैसे लॉस हो सकती है। बाकी कुछ भी याद मत रखिए, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आएगा बाकी, ठीक है। पहला प्रोविजन है कैटेगरी, पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 3 कंडीशंस। जिस पर्सन के पास इंडिया का डोमिसाइल है और वो अगर दी गई आगे में से कोई भी कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है, वो इंडिया का नागरिक बनेगा। कंडीशन कौन सी है फिर? अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ होगा, या फिर उसके पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न हुए होंगे, या फिर ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वो 5 साल से इंडिया में अगर रह रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आने से पहले, लागू करने से पहले, हाँ याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने से पहले, यानी 1940 की 45 की बात कर रहा हूँ। 50 में तो लागू किया गया ना, उसके पहले 5 साल। तो अगर ऐसी अगर कंडीशन अगर होगी तो वो पर्सन इंडिया का नागरिक बनेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंडिया में बॉर्न हुआ है या उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो वो अगर कहीं भी अमेरिका यूएस में बॉर्न होगा, लेकिन वो बन जाएगा, बिकॉज उसको इंडियन में सिटीजनशिप दी जाएगी उसके बाद। या फिर वो इंडिया का रेसिडेंट अगर होगा 1945 से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले। दूसरा, पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन। जो पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया, जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुआ था, ठीक है, तो इंडिया का नागरिक बन गया। इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 2 कंडीशंस। यार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, छोड़ देते इसमें, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कोई मतलब नहीं यहाँ पे हमें डिस्कस करने का, बस आप पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा टाइम हमारा यहाँ पे ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम आगे के पॉइंट्स पे चले जाते हैं कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जाता है। सो बेटर नॉट टू डिस्कस दिस। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
थोड़ा यहाँ पे आपको ये पार्ट को समझना। सर म्यूट हो आप। ओके ओके, म्यूट म्यूट हो गया था। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, यहाँ पे सीधा आ जाते हैं, ऊपर का पार्ट छोड़ दो, कंफ्यूज होने का काम हो जाएगा। मैं तो बताऊंगा लेकिन आप कंफ्यूज है यार, सर बहुत ज्यादा घुमा फिरा के यानी कि कॉम्प्लिकेटेड में लेके जा रहे हैं आपको। उस पार्ट में कभी क्वेश्चन किया ही नहीं गया यूपीएससी के द्वारा। आप पढ़ लेना एमएलएक्स में कहाँ से, आप नहीं छोड़ना उसको, मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ लो। सिटीजनशिप एक्ट 1935, तो 1955 में, सॉरी 1955 में ये कानून पास किया गया सिटीजनशिप एक्ट। ये पहला एक्ट है, उसके बाद सिटीजनशिप में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट की गई, 5 बार अमेंडमेंट की गई, और 6 टाइम 2019 में की गई 6 टाइम अमेंडमेंट। तो ये एक्ट पास किया गया, और ये जो एक्ट था 1955 का, ये ओरिजिनल एक्ट है सिटीजनशिप का। तो इसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की गई इसी एक्ट के अंदर, लेकिन ये जो प्रोविजन था ना, ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का, ये 2003 में इसको निकाल दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप पता है ना, कॉमनवेल्थ जो कंट्री, इंडिया अगर कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, तो कॉमनवेल्थ नेशन में जो नेशंस आते हैं उनको भी इंडिया का सिटीजनशिप रहेगा। ये प्रोविजन हटा दी, दैट वाज नॉट गुड। स्क्रॉल कर लेता हूँ, सिटीजनशिप इंडिया में कैसे एक्वायर की जाती है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप 1955। नाइनटीन 55 का जो सिटीजनशिप एक्ट था, उसके अंडर ही सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है, और इसके अंडर 5 ऐसे उन्होंने वेज बताए जिसके अंडर आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ये याद रखना, बाय बर्थ है पहला, दूसरा बाय डिसेंट है, ठीक है, इसमें तीसरा रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। और इसमें भी मैं ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगा, थोड़ी थोड़ी प्रोविजन आपको बता के एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, बिकॉज ये पूरा डिटेल भी कुछ काम का नहीं है। चलो, बाय बर्थ आपको पता है, इंडिया में जन्म हुआ, सिटीजनशिप आपको मिल गई। लेकिन जो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ कब, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के बाद, तो ये सारा डेटा है, तो वो इंडिया का नागरिक, ठीक है। A person born in India on or after July 1, 1987, 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई पर्सन इंडिया में अगर बॉर्न हुआ होगा, तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। अगर वो 1987 के बाद अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है, उस टाइम पे उसके जो पेरेंट्स है वो इंडियन चाहिए, यानी कि इंडियन बॉर्न चाहिए। जैसे कि हम, ठीक है, हम 1990 के बाद अगर बॉर्न हुए हैं, या फिर आप 1995, 90 या 1998, 2000, ठीक है, उसके बाद अगर आप बॉर्न हुए हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स ही इंडियन सिटीजन है ना, तो ऑब्वियसली कि आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है। तो इसलिए कि कोई फॉरेन कपल है यहाँ पे और उनको बेबी हुआ या बेबी गर्ल हुई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर December 3, 2004 आर कंसिडर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो, आपको क्या याद रखना, ये चीज याद रखनी है। पहला है बर्थ, डिसेंट, और ये वाला। So further, those born in India on or after December 3, 2004 are considered citizens of India only if both of their parents are citizens of India। वही मैंने बोला आपको, उसके पेरेंट्स अगर इंडिया के सिटीजन हो गए, और एक चीज आगे उन्होंने दी है, one of whose parents is a citizen of India and other is not an illegal migrant at the time of their birth। ये याद रखना, जैसे बजरंगी भाईजान सलमान खान,
ठीक है। बजरंगी भाईजान में सलमान खान बॉर्डर क्रॉस करके चला जाता है, इलीगल माइग्रेंट है वो लीगल ही नहीं जाता पाकिस्तान में, इलीगल जाता है। अगर वो वहां से किसी पाकिस्तानी लड़की से अगर शादी कर लेता है और वहां पे अगर उनको बेटा या बेटी होगी वॉट एवर, क्या वो लीगल माना जाएगा? नहीं, इलीगल माना जाएगा उसको। तो अगर कोई मानो कोई पाकिस्तानी अगर लड़की इंडिया में आती, वो भी इलीगल आती, अगर वो मानो इंडियन से शादी करती, तो फिर वो क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा वो बेबी। तो अगर वो लीगली आई है तो दैट इज होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे कि फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये यूपीएससी से ये पोस्ट निकलता है, याद रखना। डिप्लोमेट्स यानी इंडियन फॉरेन सर्विस। जैसे आपने यूपीएससी क्लियर किया, आपको आईएफएस मिल गया, सीधा कहा कोई भी कंट्री मिल सकता है, अमेरिका, कनाडा या स्विट्जरलैंड या मान लो यूरोप, कोई भी कंट्री मिल सकता है डिप्लोमेट्स बनने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको आईएफएस मिल गई तो आईएफएस मिलने के बाद क्या होगा? आप तो फॉरेन चले जाओगे। क्या फॉरेन की अपनी मर्जी जाओगे? नहीं, यू आर द एम्बेसी ऑफ इंडिया, यू आर द गवर्नमेंट सर्वेंट who are serving outside country, the foreign country on behalf of Indian government. You are the representatives of India. आपको तो वहाँ पूरी मिलिट्री सिक्योरिटी होती है फॉरेन कंट्री में, वहाँ सब गवर्नमेंट का बंगलो, गवर्नमेंट का कार, एवरीथिंग सिक्योरिटी, घर में काम करने वाली जो भी कुछ होगी इंडियन सर्वेंट, वो सब दिया जाता है आपको, वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या होगा? आप तो फॉरेन डिप्लोमेट हो बराबर, चिल्ड्रन ऑफ। तो सपोज शादी करके अगर आप उधर गए, वहाँ ना आपकी पोस्टिंग वहाँ कर दी, आपकी शादी हो गई, तो अमेरिका में अगर आपको मानो बेबी या गर्ल, बेबी गर्ल, बेबी बॉय हुआ, तो वो अमेरिकन सिटीजन होगा क्या? नहीं, दे विल बी इंडियन, ठीक है। तो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये याद रखना। जैसे इंडिया का उधर है और उधर का इंडिया में, अमेरिका के डिप्लोमेट्स मान लो इंडिया में, ठीक है, वो शादी विधि करके इधर आए इंडिया में, उन्होंने, उनके गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको भेजा है। तो डिप्लोमेट्स का काम क्या होता है? दो देशों में संबंध बनाना, ये डिप्लोमेट्स का काम होता है, ठीक है। घनिष्ठ संबंध बनाना, व्यापारी संबंध बनाना, और भी जो कुछ टेरिटोरियल संबंध है वो बनाना। तो फिर उनके डिप्लोमेट्स इंडिया में है, मैंने तो इंडिया का एग्जांपल दिया आपको उधर का, लेकिन उनके इंडिया में तो क्या होगा? उनको नागरिकता तो मिलेगा? नो, बाय बर्थ दे कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन नॉट पॉसिबल, बिकॉज उनके गवर्नमेंट के सर्वेंट से वो इंडिया में कुछ टाइम के लिए, ठीक है। चलो आगे, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। बाय डिसेंट यानी कि जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दिया डिप्लोमेट का, इंडिया का दिया, एक्चुअली मुझे देना था वहाँ अमेरिकन डिप्लोमेट इन इंडिया, मैंने आपको दे दिया इंडियन डिप्लोमेट इन अमेरिका, ठीक है, वॉट एवर। सो बाय डिसेंट का मतलब होता है पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, बट आउटसाइड इंडिया बोला इन्होंने, बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 वो भारत का नागरिक होगा बाय डिसेंट। इफ अगर उसका फादर या फिर उसकी मदर, इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, नॉट मदर बट फादर का मेंशन किया गया है यहाँ। अगर सपोज कोई इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान लो, ये उसके जॉब के लिए अमेरिका में गया या किसी फॉरेन कंट्री में गया, वहां उसने शादी कर ली, मानो अमेरिकन लेडी से शादी कर ली, तो उनका बेबी कौन होगा? अमेरिकन होगा या इंडियन होगा? कौन होगा? इंडियन या अमेरिकन? इंडियन। ऑब्वियस इंडियन होगा, ठीक है। तो उस वाई? बिकॉज फादर इंडियन है ना, तो ऑब्वियस है कि नाम तो फादर का ही जाएगा। अगर वो वहां से अगर इंडियन से ही शादी कर लेता है अमेरिका में जाकर, तो फिर वो भी इंडियन ही रहेगा, ठीक है। तो अगर उसका फादर, उन्होंने बोला फादर अगर इंडियन है उसके बर्थ के टाइम पे, तब वो इंडिया का नागरिक रहेगा। अगर लड़की वहां यहाँ से अगर वहां गई, इंडियन लड़की, अगर वो वहां किसी अमेरिकन से शादी करती, फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा, ठीक है बेस्ट एग्जाम्पल, तो वहां पे जो उनका जो बेबी होगा वो उधर का होगा, सिटीजन ऑफ अमेरिका होगा, बस फादर कहाँ का है? अमेरिकन है, ठीक है।
तो a person born outside India on or after 10 December 1992 is considered a citizen of India if either of his parents or either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. वे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है, वी शुड नॉट गो इनटू डिटेल्स. बस आप ये पहला वाला पैराग्राफ याद रखो, बाकी छोड़ दो, ये और भी यहाँ ज्यादा कंफ्यूज करेगा आप. ये वो कभी क्वेश्चन ही नहीं आया इसके ऊपर. बाय रजिस्ट्रेशन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते. इसको लेके तो पूरा घमासान चल रहा था 2019 में, इसी को लेके चल रहा था पूरा 2019 में प्रोटेस्ट, हटाओ बिल को. ठीक है, तो उसमें हाँ बहुत सारी बिल थोड़ा कंट्रोवर्सी था ही, लेकिन थोड़ा यहाँ पे हम लीगल चीज़ की बात कर लेते. तो बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, सिर्फ इलीगल माइग्रेंट को छोड़ के, इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. अगर इलीगल माइग्रेंट छोड़ के अगर कोई पर्सन है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको परमिशन दे सकती है इंडिया का नागरिक बनने के लिए. ठीक है, तो देखो कौन से टेरिटरी से वो बिलोंग होना चाहिए. पहला, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जस्ट कीप इन माइंड, अगर यहाँ से कोई कपल फॉरेन को गया, मम्मी पापा उसके जन्म के पहले अमेरिका में गए, यूएस में. अमेरिका में तो ड्यूअल सिटीजन है, इंडिया में नहीं चलता वैसे. ठीक है, इंडिया में एक ही मिलता है. तो सपोज मान लो यहाँ पे उसके पेरेंट्स वहां गए, इसका जन्म उधर हुआ इस पर्सन का, तो इसको अमेरिका की नागरिकत्व मिल गया बिकॉज वो उधर परमानेंटली सेटल हो गया वहां उसके पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने भी वहां की सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की. तो अब इंडिया का उनका तो कोई संबंध रहा नहीं. लेकिन वो लड़का है कौन? इंडियन ओरिजिन का है. कमला हैरिस कौन है? वो इंडियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डेप्यूटी प्रेसिडेंट है. उसका पूरा पीढ़ी खानदान उधर अमेरिका में पूरा पैदा होकर वहां पे बड़ा हुआ है. ठीक है, तो फिर वो इंडियन ओरिजिन की माना जाएगा ना उसको. उसका ओरिजिन क्या है? इंडियन. कमला हैरिस. ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया. दूसरा कंडीशन उन्होंने दिया, अगर कोई व्यक्ति है इंडियन ओरिजिन का और अगर वो किसी कंट्री में रेसिडेंट है और प्लेस आउटसाइड इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया. अनडिवाइडेड इंडिया की बात की 1947 के पहले की, तो उसको भी दिया जाएगा अगर वो इंडिया में आएगा. तो रजिस्ट्रेशन से अब क्या होता है, नागरिकत्व तो उसको 7 साल के बाद वो रजिस्टर कर सकता है. मिनिमम उसको 7 साल रहना पड़ेगा, 7 साल. इंडियन ओरिजिन पर्सन के लिए इतना दिन नहीं लगता, उसको कम दिन में मिल जाता है. तीसरा, पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years. ये वही बात होगी ना, कोई फॉरेनर इंडिया में आया, इंडियन लड़की से शादी किया, ठीक है, लेकिन इलीगल नहीं है, लीगल है, तो 7 साल इंडिया में रहा तो उसको इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगा. ठीक है, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. उसके बाद डी, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स जो इंडिया के नागरिक है, इसको मिल जाएगा. रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. पर्सन ऑफ फुल एज कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनको मिल जाएगा. ये एग्जाम में नहीं पूछते आपको, मैं बस बता रहा हूँ. रजिस्ट्रेशन नाम ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज में आया था 2019. अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी आएगा अंडर 2019 के लॉ, उसके अंडर उनको तो तुरंत सिटीजनशिप मिलेगा, 5 साल के अंदर ही उनको मिल रही है उन लोगों को, यानी कि जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन वगैरह है. छोड़ दो इसको, नेचुरलाइजेशन पे आ जाते हैं. बस एक ही लाइन समझ लेनी है नेचुरलाइजेशन में, उसके बाद फिर हम आगे चले जाते हैं. नेचुरलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन
नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर वो आगे दी हुई क्वालिफिकेशन को पोजेस करेगा, अगर दैट सपोज इफ he is not a subject or citizen of any country, he is not a subject or citizen of any country, where citizens of India are prevented from becoming subjects or citizens of that country by naturalization. देखो, इंडियन गवर्नमेंट ऐसे नागरिक को नागरिकत्व देगा नेचुरलाइजेशन के अंडर, ठीक है, जो इंडियंस को नेचुरलाइजेशन का सिटीजनशिप नहीं नाकारते। अगर सपोज आप अमेरिका में गए, मैं बार बार अमेरिका का एग्जांपल ले रहा हूँ, अमेरिका में भी प्रोविजन है नेचुरलाइजेशन से आपको सिटीजनशिप मिलता है, ग्रीन कार्ड मिलता है उनका, ठीक है। नेचुरलाइजेशन के मतलब आपको ज्यादा दिन साल वहां पे रहना है तो आपको ऑटोमेटिक दिया जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका किसी को अगर नेचुरल सिटीजन होने से अगर नाकारता हो किसी इंडियन को, तो फिर इंडिया भी उनको नहीं देगा बाय नेचुरलाइज से सिटीजनशिप। अगर वो इंडियंस को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरलाइज से, तो नेचुरलाइज से अगर सिटीजनशिप अमेरिका दे रहा है तभी इंडिया उनको देगा। यही पहला प्रोविजन है। इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर वो किसी देश का नागरिक है, उसको उस देश का नागरिकत्व तो कैंसिल करना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा, और इंडिया का उसको उसके बाद फिर उसको इंडिया का एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, उसके बिना नहीं दिया जाएगा। देन इसमें तीसरा प्रोविजन है, अगर he has either resided in India, been in service of government in India, or partly the one and partly the other throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application. अगर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया हो या फिर वो इंडिया में पहले रह चुका हो, ऐसा कोई नागरिक है या इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस उसने की होगी, यानी कि बाहर से उसको अपॉइंट किया गया होगा कुछ ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो ऐसे नागरिक को सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन से मिल सकता है। ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months, 14 साल तक अगर कोई रहता है इंडिया में तो वो भी बन सकता है सिटीजन। ही इज ऑफ गुड कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अच्छा है तो उसको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल सकता है। गुड कैरेक्टर का मतलब है किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड कैरेक्टर का मतलब ये नहीं, अलग नहीं समझना, ठीक है। कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या फिर किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही हैज एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8वां शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस दी गई है। अगर उसमें वो जो 22 लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, उसमें से अगर किसी लैंग्वेज का उसको अच्छा नॉलेज वगैरह होगा बहुत ज्यादा, तो ऐसे भी नागरिक को मिल जाएगा सिटीजनशिप। और इन द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन being granted to him, so he intends to reside in India or to enter into unique in service under government of India, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा being granted to him, ठीक है, इस केस में। so he intends to reside in India or to enter into or continue in service under a government in India or under an international organization of which India is a member or under society, company or body of persons. Don't consider it much. वो अलग प्रोविजन है, ये प्रोविजन आपको अवॉइड करना है। बस अभी हमने देख लिया, लास्ट प्रोविजन है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इंडिया ने चाइना पर अटैक कर दिया, पूरा चाइना को इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, चाइना के सारे सिटीजन इंडियन सिटीजन, ठीक है। चाइना ने पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान को जीत लिया, पाकिस्तान के सारे सिटीजन इंडियन सिटीजन, इसी को बोलते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने पौंडीचेरी को एक्वायर किया, उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक्ट के अंडर उनको नागरिकत्व दे दिया पौंडीचेरी को। इसका बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी यही होता है कि इंडिया किसी पे अटैक करेगा वो टेरिटरी अपने आप को ज्वाइन कर लेगा। या और वन मोर चीज, कोई कंट्री अगर इंडिया को अपना टेरिटरी बेच देगा, ठीक है, इंडिया अगर उसको खरीद लेगा तो वो भी इंडियन टेरिटरी, उसको भी इंडिया ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे देगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर।
तो उसके बाद जो आपका बचा है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, वो हम आगे के चैप्टर में ले लेंगे, यानी कि आगे की क्लास में। तो ये खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट का बाकी है आपका। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, दैट इज, और मैं आपको आर्टिकल्स की लिस्ट दे दूंगा कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया है 5 to 11 में। और फिर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएंगे ना पॉलिटी के, मैं श्योर बताता हूँ उसमें से 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे ही आएंगे। फंडामेंटल राइट्स पे तो क्वेश्चन होते ही होते 15 में से। और जो PSI की तैयारी कर रहा है पुलिस सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो पढ़ रहा है तो ये भागवत गीता ही है उसके लिए भी, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन में का एक भी क्वेश्चन उसका जाएगा नहीं यहाँ से। पूरा लक्ष्मीकांत 1 to 1 हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइन टू लाइन। तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्वेश्चन तो कोई जाएगा ही नहीं यहाँ से। कुछ पढ़ो ही मत पॉलिटी के लिए इसके अलावा। हाँ, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको एडिशनल पढ़ना है, उनको ऐसे नहीं कि इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, उनको NCERT पढ़नी है। PSI की जो तैयारी कर रहा है, स्टेट सर्विस को भी थोड़ा एडवांस पढ़ना ही है, और राज्य सेवा। लेकिन PSI के लिए आपको काफी मोर देन सफिशिएंट कंबाइन के लिए, बिकॉज आपको मेंस में तो लॉ ही है पूरा। मेंस में कोई हिस्ट्री वगैरह रहता है, ये तो यही नहीं, पॉलिटी का थोड़ा बहुत एंगल है और पूरा लॉ है, मराठी और इंग्लिश खत्म। ठीक है, आज का चैप्टर, आज का क्लास खत्म करते हैं फिर यहाँ पर। Thank you, sir. चलो, गुड नाइट ऑल, सो विल मीट ऑन वेडनेसडे। अभी शेड्यूल थोड़ा बदल गया, पहले ट्यूसडे को क्लास होती थी वीक की, अभी मंडे को, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। चलो फिर एंड करता हूँ क्लास। Thank you, sir. या वेलकम ऑल। Thank you, sir. यस, वेलकम।